lecture 16 of HRM lecture series. In this lecture, we will understand how to find the needs of training and development and how to design the training and development program. So let's start. Now we know meaning of training, meaning of development, and advantages of training and development for the organization and for the workers as well. Let us now see what is the process to find out the needs of training and development, because unless and until there is a need of training our workers, we must not indulge into training, right? So to find out whether there is a need of training and development or not, we have to follow a process. It is a 3-step process, and the first step is analyzing the organization. Now, in organizational analysis, we talk about the objectives of the organization, the short-term objectives as well as the long-term objectives. That means लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहता है, सबसे पहले ये पता करें, एनालाइज करें. उसके बाद टास्क एनालिसिस, यानी ये जो ऑर्गेनाइजेशन के शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको अचीव करने के लिए, इनको अटेन करने के लिए क्या होना है, हाउ टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स and what exactly is to be done to achieve these objectives. So this is called task analysis. After organizational analysis and task analysis, what is next is human resource analysis. That means to achieve the short-term and long-term objectives of the organization, what exactly is to be done and whether the existing workforce has the capability to do this task so that the organization is able to achieve its objectives or not. So now we are doing human resource analysis. We are measuring their present capabilities कि at present वो क्या क्या करने लायक हैं, बिल्कुल अभी उनकी क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या जो उनकी कैपेबिलिटीज हैं, और जो जॉब रिक्वायरमेंट है, ये जो अभी अभी हमने टास्क एनालिसिस में पता किया कि ये वर्कर्स की कैपेबिलिटीज हैं और ये हम उनसे चाहते हैं. इफ these are same, that means if what is to be done can be done by our workforce, there is no need for training. But if their capabilities are less than the requirement of the job, that means if there is a gap कि वो क्या कर सकते हैं और हम उनसे क्या करवाना चाहते हैं, if there is a gap, then we need to design a training program to fill this gap. That means हम अपने वर्कफोर्स को, हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स को ये काम पूरा करने लायक केपेबल बनाए विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग. तो यहां से हमें पता चला कि इफ देयर इज अ गैप बिटवीन द जॉब रिक्वायरमेंट which is necessary to achieve organizational objectives and the capabilities of our workers, then there is a need of training program. Right? So first of all, we must identify whether there is a need to train our workers or not. So if there is a need, if there is a gap between what they are supposed to do and what they can do. So if they are supposed to do more but they can do less, this gap can be filled with the help of training. So there is a need to design a training program. राइट. सो इन 3 स्टेप से हमें पता चल गया कि क्या हमें ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम को डिजाइन करने की जरूरत है भी या नहीं. तो सबसे पहले ये पता करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम. अब हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिजाइन करें जिससे हम अपने वर्कर्स का वो गैप खत्म कर पाए जो उनकी कैपेबिलिटीज और जॉब रिक्वायरमेंट में हमने अभी आइडेंटिफाई किया था. ओके, सो प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम. जब भी मैं कभी प्रोसेस वर्ड यूज करूंगी, इसका मतलब ये है कि देयर आर सर्टेन स्टेप्स विच आर टू बी फॉलोड. प्रोसेस का मतलब होता है कि कुछ काम आप वन आफ्टर द अदर करते हैं और आपका अल्टीमेट गोल आपको मिल जाता है.
Okay, so process of designing a training program. The very first step here is assessing or identifying training needs. जो अभी हमने डिस्कस किया कि हम जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जिस एनवायरमेंट और क्लाइमेट में ऑर्गेनाइजेशन को काम करना है, उनको ध्यान में रखते हुए हम गैप ढूंढ रहे हैं बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड the capability of our workforce, right? So assessing or identifying training needs with the help of thorough analysis of objectives, resources, environment and climate of the organization, gaps are found out in the organization that need to be addressed. यानी if there is a need, तो सबसे पहले हमने need identify कर ली, ट्रेनिंग की नीड है, अगर गैप्स हैं। उसके बाद सेटिंग ऑफ ट्रेनिंग गोल्स। अब अगर हमें ये पता चल गया कि ट्रेनिंग की जरूरत है, तो अब हम गोल्स सेट करें कि ये जो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं और अपने वर्कर्स को ट्रेन करेंगे, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा अल्टीमेटली, यानी आफ्टर ट्रेनिंग हमारे वर्कर्स में क्या चेंज आ जाएगा, राइट? सो ट्रांसलेटिंग द ट्रेनिंग नीड्स, ये जो अभी हमने आइडेंटिफाई की, ट्रांसलेटिंग द ट्रेनिंग नीड्स इनटू स्पेसिफिक ट्रेनिंग गोल्स, कि जो हम प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं उसका अल्टीमेटली होगा क्या, तो स्पेसिफिक गोल्स बताना, ट्रेनिंग प्रोग्राम के गोल्स बताना, सच एज इंडिविजुअल स्पेसिफिक ट्रेनिंग और जनरल ट्रेनिंग। दोनों तरह की हो सकती है। अगर हमें सिर्फ कुछ खास लोगों को ट्रेनिंग देनी है क्योंकि कुछ खास लोगों में हमें कमी मिली, या वो जो गोल अचीव करना है वो इन्हीं थोड़े से लोगों ने करना है, तो वी डिजाइन इंडिविजुअल स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम। और अगर हमें लगता है कि जितने भी वर्कर्स हैं उन सब की नॉलेज को, स्किल को रिफ्रेश या अपडेट या अपग्रेड करने की जरूरत है, तब हम डिजाइन करते हैं एक जनरल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में हम कर रहे हैं ट्रेनिंग गोल्स सेट, कि किस तरह के गोल्स हम अचीव कर लेंगे पोस्ट ट्रेनिंग होने के बाद। This is the second step. Then third is selection of trainers, and this is very important. जब हमें ये पता चला कि जो हमारे वर्कर्स हैं, जो उनकी एग्जिस्टिंग या प्रेजेंट कैपेबिलिटीज हैं, these are not up to date mark, और सिर्फ इन कैपेबिलिटीज से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव नहीं कर पाएंगे, तो हमने डिसाइड किया कि उन्हें ट्रेन करने की जरूरत है, और ट्रेन करने के लिए हमने ट्रेनिंग गोल्स भी सेट कर दिए। नाउ द third step, very important here, selection of trainers, and this selection of trainers यानी who will train, तो this selection is based on employees needs, जो वर्कर्स हैं जिनको ट्रेन किया जाना है उनकी क्या जरूरतें हैं, आउटडेटेड स्किल्स, कि अगर वो आउटडेटेड स्किल्स हैं जो ऑलरेडी उनको आती हैं, तो अब हमें कैसे ट्रेनर चाहिए होंगे, हमें ऐसे ट्रेनर चाहिए जिन्हें वो नई स्किल्स जो हम सिखाना चाहते हैं अपने वर्कर्स को, वो उन्हें सिखाना आता हो। ठीक है, नीड फॉर मल्टीपल स्किल्स, ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक या दो स्किल से ही काम नहीं चलेगा, वी नीड टू ट्रेन आवर वर्कर्स इन मल्टीपल स्किल्स। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब वो ट्रेनर हम ऐसा सिलेक्ट करेंगे जिसको पहले तो मल्टीपल स्किल्स आती हो और फिर वो स्किल्स सिखाना भी आता हो। तो ये दो बातें होती हैं। बहुत बार हमें एक काम तो करना आता है, लेकिन दूसरे को यह समझाना कि ये काम कैसा करना है उसमें हम लैक करते हैं। तो ट्रेनर कैसा हो, जिसको अगर हमारी नीड मल्टीपल स्किल्स की है तो उसे मल्टीपल स्किल्स भी आती हो और उन मल्टीपल स्किल्स को सिखाना भी आता हो, क्योंकि अल्टीमेटली वर्कर्स को सिखाने की जरूरत है। देन नीड टू कीप पेस विद द इंडस्ट्री, जो ट्रेनर हम सिलेक्ट करें वो अपडेटेड ट्रेनर्स होने चाहिए, वो पुराने ट्रेनर्स नहीं होने चाहिए। पुरानी तरह की चीजें ही सिखा के चले गए तो इट विल बी ऑफ नो यूज। तो वो खुद उस इंडस्ट्री में जो भी कुछ लेटेस्ट हो रहा है, जिस इंडस्ट्री की भी हम बात कर रहे हैं, जो भी हमारी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में वट एवर इज हैपनिंग राइट नाउ और इन नियर फ्यूचर, उस सब के साथ भी उनको वो नॉलेज होनी चाहिए कि इंडस्ट्री की डिमांड क्या है और आने वाले टाइम में क्या होगी। क्योंकि जो ट्रेनिंग दी जा रही है ना, वो बिल्कुल अभी के लिए नहीं दी जा रही। द ट्रेनिंग इज बीइंग इम्पार्टेड फॉर फ्यूचर ऑल्सो, तो आने वाले टाइम के लिए, तो उसे वो चीजें सिखानी भी आनी चाहिए। तो ट्रेनर कैसा हो, एम्प्लॉय की नीड पर बेस्ड डिसाइड करेंगे। आउटडेटेड स्किल्स हैं तो उसके बेस पर डिसाइड करेंगे कि वो भी अगर आउटडेटेड स्किल्स ही देने जा रहा है तो देयर इज नो यूज।
तो हमें पुरानी स्किल्स भुलानी है और रीलर्न कराना है तो वो ट्रेनर को आना चाहिए। अगर हमें मल्टीपल स्किल्स इम्पार्ट करनी है अपने वर्कर्स को तो वो देना आना चाहिए ट्रेनर को, तो पहले उसको वो स्किल्स भी आनी चाहिए और वो ट्रांसमिट करनी भी आनी चाहिए, कम्युनिकेट करनी भी आनी चाहिए, और वो उसकी खुद की नॉलेज अपडेटेड होनी चाहिए, ठीक है, एडवांस होनी चाहिए। ये नहीं कि पुरानी नॉलेज के साथ वो काम कर रहा है। तो ट्रेनर मस्ट keep pace with the industry. So this was the third step where we talk about selection of trainers. Then the fourth step in designing a training program is organization of training program. अब आप कहेंगे कि डिजाइनिंग और ऑर्गेनाइजेशन क्या हम बात कर रहे हैं, कि अगर हम ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन से क्या मतलब है। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना, ये वो चीज हो रही है। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंपनी के बारे में बात नहीं हो रही है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। दैट मीन्स चूजिंग द राइट ट्रेनिंग मेथड एंड डेवलपिंग कंटेंट बेस्ड ऑन ट्रेनिंग गोल्स, सिलेक्टिंग ट्रेनर, selecting course content, selecting duration and coverage to maintain uniformity. देखिए क्या हो रहा है, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो सही ट्रेनिंग मेथड चूज करना है, क्योंकि ट्रेनिंग मेथड बहुत सारे होते हैं। जब हम मेथड्स के बारे में बात करेंगे तो वी विल टॉक ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स। तो जिस चीज को हमें सिखाना है, जो स्किल हम इम्पार्ट करना चाहते हैं, जिस लेवल के वर्कर्स को इम्पार्ट करना चाहते हैं, उस हिसाब से हमें राइट ट्रेनिंग मेथड चूज करने की जरूरत है, सबसे पहली बात ये। और जो कंटेंट है कि हम सिखाएंगे क्या, वो डेवलप करने के लिए हमें क्या ध्यान रखने की जरूरत है कि ट्रेनिंग का अल्टीमेटली गोल क्या है, यानी हम क्यों सिखा रहे हैं। तो हम क्यों सिखा रहे हैं उसके बेस पर डिसाइड होगा कि हम क्या सिखाएंगे। तो वो पर्पस पूरा होना चाहिए ना जो ट्रेनिंग का है, तो वो पूरा करने के लिए क्या सिखाएंगे, दैट डिपेंड्स कि हम क्यों सिखा रहे हैं, राइट। देन सिलेक्टिंग ट्रेनर। अब ट्रेनर दो तरह के हो सकते हैं, वो इन हाउस भी हो सकते हैं, कंपनी के अपने एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, या फिर हम उन्हें आउटसोर्स कर लें, हम उन्हें बाहर से बुलाएं। तो इट डिपेंड्स कि हमें क्या ट्रेनिंग देनी है। अगर वो सिखाने वाले वर्कर्स, वो सिखाने वाले ट्रेनर्स ऑलरेडी हमारी कंपनी में हैं तो हम इन हाउस ट्रेनर्स यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी कंपनी में वैसी ट्रेनिंग देने वाले वर्कर्स नहीं हैं, ट्रेनर्स नहीं हैं, या फिर वो ट्रेनर्स महंगे पड़ रहे हैं अगर हम अपनी ही कंपनी के लोगों से काम कराएं, वो मैं बाद में आपसे डिस्कस करूंगी कि क्यों वो महंगे पड़ रहे हैं, तो इट इज बेटर कि हम स्पेशलिस्ट को आउटसोर्स कर लें, जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको आउटसोर्स करें अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग देने के लिए। तो सिलेक्टिंग ट्रेनर हो गया, दो तरह के हो सकते हैं, दोनों में से कौन से लेने हैं वो डिसाइड करना। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने से रिलेटेड है। फिर कोर्स कंटेंट, कि जो टोटल कुछ सिखाया जाएगा उसको हम चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज डिवाइड करें, डे वाइज डिवाइड करें, एक ही दिन में मॉर्निंग और इवनिंग शेड्यूल का बनाएं। ड्यूरेशन, टोटल ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग क्या होगी, विल दैट बी अ 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम और अ वीक ट्रेनिंग प्रोग्राम, और इट कैन बी अ 1 मंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम और मोर देन दैट 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, 1 ईयर की ट्रेनिंग होती है। इट डिपेंड्स कि हमें क्या सिखाना है, कितना सिखाना है, उस हिसाब से ड्यूरेशन। एंड देन कवरेज टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, की ओवरऑल टोटल क्या कवर किया जाएगा ट्रेनिंग देते हुए, ताकि जितने भी लोग उस ट्रेनिंग को करें, वो चाहे अभी फर्स्ट बैच में ट्रेनिंग ले रहे हो या मे बी नेक्स्ट बैच में वो ज्वाइन करें, तो यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। अगर हमने कोर्स कंटेंट, ड्यूरेशन और कवरेज को प्री डिसाइड कर रखा है, हमने पहले से ही ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रखा है, तो यूनिफॉर्म तरीके से हम सारे वर्कर्स को ट्रेनिंग दे पाएंगे। देन द फिफ्थ स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ बजट। अब ट्रेनिंग मैंने पहले भी बताया था कि दिस इज एन एक्सपेंसिव एक्टिविटी, इसमें खर्चा होता है, और खर्चा मटेरियल का भी हो सकता है, खर्चा मेथड्स का भी हो सकता है, जो आपके पास ट्रेनर आएंगे उनको पे करना होता है। तो इट इज एन एक्सपेंसिव, और जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं वो वर्कर्स जितनी देर की ट्रेनिंग ले रहे हैं उतनी देर वो नॉर्मल जो उनकी ड्यूटी है वो तो नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो ड्यूटी उस टाइम पूरी नहीं कर रहे हैं तो वो भी खर्चे में इंक्लूड करें, क्योंकि हम उनको सैलरी तो देते रहेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ बजट के बारे में बात हो रही है कि ट्रेनिंग इनकर्स कॉस्ट्स,
ट्रेनिंग देने में कॉस्ट हो रही है, कंपनी को कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है। कॉस्ट किस किस तरह की है? कॉस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड देयरफॉर ट्रेनर्स शुड बी ट्रेन्ड suitably. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जहां हम कह रहे हैं ट्रेनर्स शुड बी ट्रेन्ड suitably. माइंड यू, मैं ट्रेनी नहीं बोल रही हूं, ट्रेनर्स शुड बी ट्रेन्ड suitably, यानी जिन लोगों ने सिखाना है वो भी अच्छे से सीखे हुए होने चाहिए। उनको ना सिर्फ वो स्किल आनी चाहिए जो सिखानी है, पर कैसे सिखानी है ये भी आना चाहिए। ठीक है, तो ट्रेनर्स भी ट्रेंड होने चाहिए ताकि जो खर्च हम ट्रेनिंग पर कर रहे हैं वो वेस्ट ना हो जाए। ठीक है, देन नेक्स्ट, इवैल्यूएशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम हमने बनाया, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने बनाया, लास्ट में हम क्या करते हैं? एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम हमें चाहिए उसकी इफेक्टिवनेस को मेजर करना कि जो हम चाहते थे, जो हमने ट्रेनिंग गोल्स यहाँ पर फिक्स किए थे, ट्रेनिंग गोल्स हमने सेट किए थे, क्या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग वो गोल्स हम अचीव कर पाए? अगर हम वो गोल्स अचीव कर पाए तो हम कहेंगे कि हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था वो इफेक्टिव था, और अगर वो गोल्स अचीव नहीं हुए इसका मतलब इफेक्टिव नहीं था। तो अब कैसे पता करें, कैसे इवैल्यूएट करें कि हमारा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम इफेक्टिव है या नहीं, यानी इससे वो गोल पूरे हुए जो हमने ट्रेनिंग के लिए डिसाइड किए थे, सेट किए थे या नहीं? तो वो करने का तरीका, टू असेस द आउटकम एंड इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑन द बेसिस ऑफ, कैसे कैसे कर सकते हैं? नंबर 1, रिएक्शन ऑफ द ट्रेनीज का रिएक्शन देखें, प्री ट्रेनिंग क्या था और पोस्ट ट्रेनिंग क्या था। तो उनसे पूछा जा रहा है, उनसे फीडबैक लिया जा रहा है कि ये जो आपने 1 हफ्ते की ट्रेनिंग की, या ये जो आपने 15 दिन की ट्रेनिंग की, या 6 महीने की ट्रेनिंग, कुछ भी ड्यूरेशन, तो इट डिपेंड्स कि हम क्या ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं। तो अब उनसे उनका फीडबैक लिया जाए कि व्हाट डू दे थिंक अबाउट ट्रेनिंग, कि ट्रेनिंग से पहले उनका क्या स्टेटस था और ट्रेनिंग के बाद क्या चेंज आया। तो रिएक्शन लेना है ट्रेनीज का, एक तरीका ये है ट्रेनिंग प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करने का। एक तरीका है लर्निंग बाय कंडक्टिंग अ टेस्ट आफ्टर ट्रेनिंग। नॉर्मली ऐसा होता है, आप भी टेस्ट देते हैं, जब टीचर्स आपको कुछ टॉपिक्स समझा देते हैं, आप उन्हें सीख लेते हैं, तो उसके बाद ये पता करने के लिए कि क्या एक्चुअली आपने वो सीख लिया जो आपको सिखाया गया था, तो क्या किया जाए? टेस्ट लिया जाए। तो लर्निंग आउटकम देखे जाते हैं कि जो काम किया गया था, जो काम होना था, ट्रेनिंग का जो गोल हमने सेट किया था, उसके लिए क्या वो गोल पूरा हुआ? तो एक टेस्ट लिया जाए वर्कर्स का आफ्टर ट्रेनिंग, तो पता चल जाएगा कि उतनी लर्निंग हुई जो हम सोच रहे थे या नहीं हुई। नेक्स्ट मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम इज बिहेवियर चेंज इन ट्रेनीज, कि क्या ट्रेनीज के बिहेवियर में प्री ट्रेनिंग एंड पोस्ट ट्रेनिंग कोई चेंज है? क्या उनमें बिहेवियरल चेंज आ गया, सीखने से पहले, सीखने के बाद? सबसे पहला चेंज जो आना चाहिए आफ्टर ट्रेनिंग वो है इंक्रीज इन कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब आपको ये एक नई चीज, जब तक आपको नहीं आती है तब तक आप डरते हैं, घबराते हैं, नर्वस होते हैं, और जब आप उस चीज को सीख लेते हैं तो आपका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है। तो सबसे पहला बिहेवियरल चेंज जो आता है अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम इफेक्टिव था, कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, राइट? तो एक बिहेवियरल चेंज देखते हैं, इवन उनकी परफॉर्मेंस हम देखते हैं कि क्या अब वो ज्यादा कॉन्फिडेंट तरीके से काम कर पा रहे हैं। तो दिस इज चेंज इन ट्रेनीज pre and post training program, right? And the last one, very important, we measure changes in results कौन से? कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल था ना, जिसके लिए हमने कहा था कि हमें अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग देने की जरूरत है, क्या वो गोल हम अचीव कर पा रहे हैं? अगर हमने अपने वर्कर्स को ट्रेन कर दिया तो क्या वो गोल अचीव हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो सकता है कि उन्हें लॉन्ग टर्म कॉस्ट घटानी है, और क्या हम ये देखें, अब हम मेजर करें कि जब तक हमने वर्कर्स को ट्रेन नहीं किया था तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी आ रही थी पर यूनिट, और 6 महीने की ट्रेनिंग जब हमने वर्कर्स को दे दी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये आ गई। एंड इफ देयर इज अ डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसका सीधा सा मतलब है कि हमें वो रिजल्ट मिल गया जो हमें ट्रेनिंग से चाहिए था। ठीक है, लेकिन इनमें एक चीज है, जब हम रिजल्ट्स की बात करते हैं ना, तो ये हम इमीडिएटली
आफ्टर ट्रेनिंग मेजर नहीं कर सकते. वी नीड टू गिव टाइम, क्योंकि कॉस्ट डिक्रीज, तो जब वर्कर्स ट्रेनिंग के बाद वापस जाएंगे अपने वर्क प्लेस पे और काम करना शुरू करेंगे तभी तो हम कॉस्ट मेजर कर सकते हैं. इसी तरह से कंप्लेंट्स डिक्रीज, कि क्या वर्कर्स के काम के बाद क्या उनके अगेंस्ट कंप्लेंट आनी घट गई. तो अगर हमारी ट्रेनिंग का ये गोल था कि जो कंप्लेंट्स आ रही हैं वो घटें, तो आफ्टर the workers resume their duties post training, तो क्या कंप्लेंट्स घट गई. अगर घट गई तो रिजल्ट सही है. We are able to fulfill or achieve the goal that we wanted to achieve with दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, है ना. तो रिजल्ट्स की जब हम बात करें तो कंप्लेंट्स डिक्रीज्ड एक रिजल्ट हो सकता है अगर ये हमारा गोल था तो. कॉस्ट डिक्रीज्ड अनदर रिजल्ट हो सकता है अगर ये गोल था तो. गोल्स अचीव्ड, अब फॉर एग्जांपल हम सेल्स टर्नओवर बढ़ाना चाहते थे और इसके लिए हमने अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग दी, तो अब हम देखेंगे कि एट द एंड ऑफ द ईयर क्या हमारा सेल्स टर्नओवर बढ़ गया. अगर बढ़ गया तो ये गोल अचीव हो गया, यानी ट्रेनिंग वाज सक्सेसफुल, ट्रेनिंग वाज इफेक्टिव. तो हम ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करने के ये तरीके हैं. ये इमीडिएटली हो जाता है, रिएक्शन भी, लर्निंग भी. बिहेवियर का जो चेंज है वो हम धीरे धीरे ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं. और रिजल्ट्स के बारे में जहां तक बात है तो दिस वी कम टू नो आफ्टर अ कंपैरेटिवली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, कि ट्रेनिंग के बाद ये चेंज आ जाना चाहिए था, और अगर वो आ गया है तो दैट इज desirable, and that shows that our training program was effective. So with this we complete our two small topics. एक तो हमने ये देखा कि we need to identify the need of the training before designing a training program, and then how to design the training program. तो उसके steps क्या हैं उनके बारे में बात की. In the next class we'll talk about new topic